Hare Krishna. So we are on the 23rd verse of the 5th chapter of Gita entitled Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. We see Krishna has been telling the essence of spiritual existence, the essence of material existence, and how to come out of it. This is what we have been seeing from text 16 onwards. So last 7 verses Krishna has been telling, and Krishna, he tells a very important formula today. He says, Shaknoti haiva yah sudhum praksharira vimokshanat kama krodhodbhavam vegam sayuktah sasukhi narah. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the forces of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. So what stops us from being happy is the urges that we have. जो आंतरिक इच्छाएं होती है ना, हम कहते हैं प्रभु जी बहुत कोशिश करता हूं, नहीं होता। ये कौन सी इच्छाएं हैं जो हमें प्रैक्टिकली रज और तमस की ओर लेके जाती हैं? श्री रूप गोस्वामी हमें उपदेशामृत में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। 6 प्रकार के वेग हैं। There are 6 urges that a human being has. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वमपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। रूप गोस्वामी कहते हैं 6 urges very very difficult to overcome. वाचो वेगा, the desire to speak. हर कोई बोलना चाहता है, सुनना बहुत कम लोग चाहते हैं. But the quality of a great leader is someone who is willing and able to listen. So वाचो वेगम. मनसः, मन हमें गलत चीज़ों के प्रति, गलत भावनाओं के प्रति, गलत व्यक्तियों के प्रति, गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित करता रहता है. इस वेग का दमन. क्रोध वेगम, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती. Yes, that is what is called anger. What is anger? When I want something to be done in a particular way and that doesn't happen in that particular way. That is what is anger. So ये जब बहुत ज़्यादा क्रोध का वेग आता है. उदर, yes. So उदर का वेग, अरे हम खाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं. उपस्थ वेगम, the urges of the genitals, the desire for having contact with opposite sex. So ये सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को इस देह से, इस आध्यात्म बुद्धि से बांधती हैं. इनसे जो उभर सकता है. So Krishna says that शक्नोति इहैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्. अपने शरीर के जाने से पहले अगर कोई इन 6 वेगों का दमन कर सकता है. कैसे उत्पन्न होते हैं ये वेग? काम क्रोध उद्भवम वेग. ऑल दीज urges, वाच, मनस, क्रोध, जिह्वा, उदर, उपस्थ, all these vegas, they have their beginning, they have their seed in काम and क्रोध. So then he becomes happy. Yes. In this material world, everyone wants to be happy. लेकिन वो सिचुएशन कैसी है जिसमें हम हैप्पी हो सकते हैं? Only in control can we be happy. This is a very very important concept to understand. Time and again Krishna has been emphasizing, control yourself, tolerate dualities, don't be succumbed to things in this material world. Yes. So one might think, अरे what is this control? कितना भगवान बोल रहे हैं कंट्रोल. भगवान भी क्या करेंगे? हम देखते हैं, हम जब भी रोग अवस्था में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है लिक्विड डाइट पर रहिए. Now we are used to a solid diet.
So when we come on a liquid diet, we feel, "Arey, I am not eating." But if I keep on eating the way doctor has not advised me, मेरा रोग कभी ठीक होगा ही नहीं। उसी प्रकार से अगर मैं अपने आप को थोड़े समय तक, 2 हफ्तों तक कंट्रोल करके रखूं, तो पूरी जिंदगी भर मौज मार सकता हूं। उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को इस जीवन में कंट्रोल करके रखें, तो हम अनादि अनंत काल तक मौज मार सकते हैं। Just like when I get disease, doctor tells me to restrain senses or restrain a particular food for 2 weeks. What is that 2 weeks compared to my 100 years or 60 or 70 years of life? Nothing. Insignificant. उसी प्रकार से इस जन्म में मेरे 70 साल compared to eternity, insignificant. That's why tolerate. Yes. So, जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसी प्रकार से एक भोगी व्यक्ति को इंद्रियों का भोग करने की अत्यंत इच्छा है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो कंट्रोल करेगा तो ही इस नैया की तरह, इस बोट की तरह इस संसार में से आगे जाता जाएगा। आवर कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड माइंड is exactly like the motor of that boat. वो बोट है, वो बोट हमारे मनुष्य शरीर की तरह है। उस बोट में अगर मोटर नहीं लगी है, वो बोट होके क्या फायदा। उसी प्रकार से मनुष्य देह है, लेकिन मनुष्य देह में अगर हम अपने आप को कंट्रोल्ड नहीं रखते, तो मनुष्य देह लाके क्या फायदा। तो भगवान कहते हैं, इस शरीर का अंत होने से पहले जो इन 6 वेगों को पूरी तरह से दमन कर लेता है, वो व्यक्ति एक्चुअली बेस्ट है। ही इज एक्चुअली हैप्पी। रूप गोस्वामी इवन गोस फर्दर, ही सेज एतान वेगान यो विषहेत धीरः, अ सोबर, अ धीर व्यक्ति हु कंट्रोल्स सर्वम अपीमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। ही इज एक्चुअली जगत गुरु। ही इज क्वालिफाइड टू टेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जगत गुरु कौन है? जो 6 वेगों का दमन कर सकता है, वो जगत गुरु है। और हम सभी बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली रहे हैं एक ऐसे ही जगत गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने की। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, वहां पर अपने गुरु महाराज की आज्ञा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार किया। ऐसी अवस्था में जब उनके पास 40 रुपए हैं, डॉलर्स में भी कन्वर्टेड नहीं है, अमेरिका जाकर के बाएं मुड़े या दाएं मुड़े ये न जानते हुए अमेरिका गए, वहां पर हिप्पियों को प्रचार किया। उन हिप्पियों को भारत में लेकर के आए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित हुआ। पूरे विश्व भर में आज 400 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर हैं, फार्म कम्युनिटीज हैं, प्रचार हो रहा है। पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस्कॉन का नाम आया है कि सबसे ज्यादा वैदिक ग्रंथों का वितरण अगर कोई हो रहा है तो ये संस्था कर रही है भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के माध्यम से। ये सब कैसे हुआ? केवल एक जगत गुरु के माध्यम से। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी हमारा अस्तित्व इस पेड़ की तरह है। इस भौतिक जगत में दुखों का आवागमन हमारे शरीर को और हमारे मन को ऐसे पतझड़ की तरह निष्ठुर बना देता है। लेकिन अगर शरीर के अंत होने से पहले हम इन वेगों का दमन कर लें, सो दैट इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Krishna Krishna Krishna